राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदनंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nita Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Lord Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada,
जय प्रभुपाद 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 जय जय श्रीपाद 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय श्री राधा माधव भगवान की जय जय श्री जय हो महाराज की जय श्रीपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो पहले हम भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट की तरफ से हम सब भक्तों को स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारा भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट की तरफ से भागवत कथा में सबको स्वागत। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। नित्यं भागवतं सेवया। भागवते उत्तम श्लोके भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम जय। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक नंबर 53। यथा त्रिवर्गा गुरुभिः यदा त्रिवर्गा गुरुभिः तदा आत्मने उपासिखितम् आत्मने उपाशिक्षितम् न साधु मेने तत्सिक्ष्यम् न साधु मेने ताचिशिक्षम् द्वन्द्वारामपविर्नितम् द्वन्द्वारामोपवर्णितम् यथा त्रिवर्गा गुरुभिरात्मने यदा त्रिवर्गां गुरुभिरात्मने उपासिखितम् उपाशिक्षितम् न साधु मेने तत्सिक्ष्यम् न साधु मेने तत्शिक्षम् द्वन्द्वारामपवर्णितम् द्वन्द्वारामोपवर्णितम्। पढ़िए। यदा त्रिवर्गं गुरुभिः यथा त्रिवर्गा गुरुभिः आत्मने उपशिक्षितम् आत्मने उपशिक्षितम् न साधु मेने तचक्षुम् न साधु मेने तत्सिक्ष्यम् द्वन्द्वारामोपवर्णितम्। द्वन्द्वारामपवर्णितम्। तो ट्रांसलेशन पर्पट पढ़िए।
Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation. The teachers Shanda and Amarka instructed Prahlad Maharaja in the three kinds of material advancement called religion, economic development, and sense gratification. Prahlada, however, being situated above such instructions, did not like them, for such instructions are based on the duality of worldly affairs, which involve one in a materialistic way of life marked by birth, death, old age, and disease. Purport. The entire world is interested in the materialistic way of life. Indeed, practically 99.9% of the people in the three worlds are uninterested in liberation or spiritual education. Only the devotees of the Lord, headed by such great personalities as Prahlad Maharaja and Narada Muni, are interested in the real education of spiritual life. One cannot understand the principles of religion while staying on the material platform. Therefore, one must follow these great personalities. As stated in Srimad Bhagavatam 6.3.20, Swayambhur Narada Shambhu Kumara Kapilo Manuhu Prahlado Janako Bhishmo Balir Vayashakher Vayasaki Vayam. Bhayam. One must follow in the footsteps of such great personalities as Lord Brahma, Narada, Lord Shiva, Kapila, Manu, the Kumaras, Prahlad Maharaja, Bhishma, Janaka, Bali Maharaja, Sukadeva Goswami, and Yamaraja. Those interested in spiritual life should follow Prahlad Maharaja in rejecting the education of religion, economic development, and sense gratification. One should be interested in spiritual education. Therefore, the Krishna consciousness movement is spreading all over the world, following in the footsteps of Prahlad Maharaja, who did not like any of the materialistic education मोबाइल चलाएंगे he received from his teachers. Hare करो देखो आप सीखने Hare Krishna Maharaj. हरे कृष्णा ऐसे होते जय श्री गुरुदेव प्रभुपाद की जय नमस्ते कृष्ण कृष्ण भूतले सिंधु भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी नित्य नामिने नमस्यद भक्त मनाय मणिपुर उद्भवाय च प्रभुपादन स्तुवाणी प्रचार निरतायते नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ता वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीशे नमो नमः वंशागणपतिर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। यह बहुत अच्छा श्लोक है ये प्रहलाद महाराज का शिक्षा संडामार का यदि प्रहलाद महाराज को त्रिवर्ग शिक्षा दे रहे लेकिन प्रहलाद महाराज इसके ऊपर गुरुत्व नहीं दे रहे न साधमन्य इसको उपयुक्त बोल के स्वीकार नहीं कर रहे शिक्षा क्योंकि उन्होंने उन्नत रस आस्वादन किया है तो इसी कारण ऑटोमेटिक स्वतः इसके ऊपर अवहेला करते हैं। पॉलिटिक्स और अर्थनीति भोग विलास धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मुख्य चतुर्वर्ग पंचम वर्ग भक्ति पंचम पुरुषार्थ। तो
हम लोग ये श्लोक में कुछ 3-4 पॉइंट संग्रह किया, वो माध्यम से हम लोग अतिशय से समझ सकते हैं। एक है प्रहलाद महाराज का जो शिक्षा है त्रिवर्ग। दूसरा, जब हम प्रथम अवस्था में प्राथमिक बाल्य अवस्था में यदि भगवत भक्ति को हम अनुशीलन किया, हम लोग शिक्षा, तो आगे जाकर के माया का प्रभाव से बच सकते हैं, माया का व भोग विलास प्रवृत्ति से बच सकते हैं। तीसरा, प्रभुपाद महाराज कहते हैं 99.9 लोग इंद्रिय सुख को गुरुत्व देते हैं। ये परिवेश का प्रभाव इतना प्रभावित होता है, प्रभाव का स्रोत में हम लोग बह जाते हैं। और ये 3 पॉइंट हम लोग संग्रह किए। ये गए प्रवाह से सब चलते हैं। प्रथम अवस्था में जो भागवतम का अनुशीलन किया, भगवान का आश्रित हुआ, वो लाखों प्रभाव से भी प्रभावित नहीं होते हैं। और पहला जो है ठंडा मर के इतने महान विद्वान लोग भी वही तीनों वर्गों को केंद्र करके ही शिक्षा दे रहे हैं। आजकल स्कूल कॉलेज की बात छोड़ दीजिए, लोग शुक्राचार्य की इतने उन्नत संतान है, इतना उन्नत साधक है, तभी उन्होंने शिक्षा किया ये 3 वर्गों को केंद्र करके। धर्म अर्थ काम, ये 3 जो है ये भगवान ने ये जगत में स्थापना किए हैं। क्योंकि हम लोग कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ मायातरे झापटिया धरे, ये माया देवी का काम है। ये सब हमको ठीक है, तुम आओ, हम तुमको सब प्रकार फैसिलिटी दूंगा, अब देखो तुम लोग इसमें सुखी हो सकते हैं क्या। क्योंकि हम लोग भगवान का अमृत संतान है, तो हम लोग को अमृत जगत के द्वारा सुख दे नहीं सकता, लेकिन हम लोग भ्रम के कारण हम लोग ये सुख को सुख बोल के सोच रहे हैं, बात दुख को सुख को बोल के सोच रहे हैं। ये सभी जो ग्राम्य सुख व सांसारिक सुख ये दुख ही है, दुख का कारण है, लेकिन हम उसको सुख बोल के उसमें ही हम लोग प्रभावित है व उसके अंदर ही हम लोग रहते हैं। तो इस कारण माया देवी व भक्ति जगत में ये सारे फैसिलिटी भगवान का इच्छा से है। ये सारे फैसिलिटी को लेकर के हम लोग सुखी बनने को कोशिश कर रहे, लेकिन सुखी नहीं हो पा रहे। तो इसी कारण ये जो भूत प्रकृति ने हमको धर्म अर्थ काम ये स्वतः देते हैं, सबको मिल रहा है। मोक्ष तो थोड़ा अलग है, लेकिन धर्म अर्थ काम जो है ये स्वतः सबको मिलता है। जैसे प्रभुपाद महाराज कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य पशु भी नारायण, ये 4 जो है पशु पक्षी वृक्ष लता सबको भगवान दे रहे। तो मनुष्य भी भगवान का समाज में, भगवान का सृष्टि में एक जानवर है, तो वो भी उसमें अंतर्भुक्त है, तो उसको भी ये सब मिल रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन स्वतः मिल रहा है। लेकिन स्वतः मिलता नहीं, एक ही है जो मुक्ति व भगवत भक्ति, ये स्वतः कोई परिस्थिति में किसी को प्राप्त हो जाता है ऐसा वर्णन नहीं है, उसके लिए हम लोग प्रयत्न करना चाहिए। और दूसरे, हम लोग
जब संकीर्तन कर रहे थे, एक हमारा गृहस्थ भक्त ने बहुत अच्छे से एक उदाहरण दिए। ये जगत का जो 99% 9 का जो भोग विलास, सांसारिक सुख, सांसारिक कर्तव्य, सांसारिक धर्म को गुरुत्व दे करके जो जीवन यापन कर रहे, इसको उन्होंने एक तुलना की है सर्कस के साथ। एक बड़ा सिटी में एक सर्कस आ रहे, तो सिटी का सभी लोग सर्कस के द्वारा प्रभावित होते हैं, सर्कस देखने को दौड़ते हैं। 50, 100, 200, आजकल 500, 1000 हो गया सर्कस का टिकट। तो सर्कस देखने को जाते हैं और वो लोग सर्कस देख करके आके सबको प्रीचिंग करते हैं, तुम सर्कस देखने को गया नहीं? नहीं भाई, मैं तो गया नहीं अभी तक। अरे, ऐसा सर्कस कहाँ मिलेगा? जाओ जाओ जाओ, बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या अच्छा है कोई भी बोल नहीं पाता। लेकिन सब लोग वो सर्कस के ऊपर ही वर्णन करते हैं। हाँ, सर्कस में यह है, वो है, हाँ, हाथी है और सुंदर ढंग से डोला खेल है, ऐसा कुछ-कुछ बोल करके हुँ, सबको आप्यायित करते हैं। जो कि बहु लोग का प्रेरणा से हर व्यक्ति वो सर्कस को भोग करते हुए दर्शन देखने को दौड़ते हैं। लेकिन कोई बोलता ही नहीं कि ये सर्कस में है क्या? कुछ नहीं है। तो वैसा ही ये सांसारिक सुख, सांसारिक पूजा प्रतिष्ठा, जो धर्म अर्थ काम, इसमें है क्या? शरीर छोड़ दिया, नाशवान शरीर, तो बस कुछ मूल्य नहीं है। इसके ऊपर कोई भी नहीं बोल रहे, लेकिन सब बोल रहे तुम धन कमाया नहीं, तुम धर्म अर्थ और काम, तुम अभी तक शादी किया नहीं, तो प्रभु जी हम लोग को ये सब वर्णन किए जो सर्कस के साथ विवाह के समान की तुलना की है। तुम अभी तक विवाह किया नहीं है, जब विवाह कर लो, विवाह कर लो, शादी कर लो। शादी के बिना ये जीवन अधूरा है। कोई भी ऐसा शिक्षा नहीं देता है कि भाई शादी में है क्या, इसके ऊपर कोई नहीं शिक्षा देते हैं। हम लोग देख रहे हैं हमारा विवाह जीवन में प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि कोई ज्यादा से ज्यादा 1 संतान, 2 संतान, 5 संतान बनाते हैं। वो भी भगवान का और प्रकृति का आशीर्वाद से। हम्म तो लेकिन इसमें ही पूरा जीवन दे देते हैं। लेकिन यदि कोई विवाह जीवन से मुक्त होकर के ब्रह्मचारी जीवन, साधनामय जीवन यापन कर रहा है, तो हम देखते हैं जैसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज के पास कितने संतान है, लाखों संतान है। लाखों संतान को केंद्र करके वो योजनाबद्ध काम कर रहे, लेकिन विवाह जीवन यापन में सिर्फ 2-3 संतान है और 2-3 संतान को केंद्र करके ही बस पूरा जीवन दे देते हैं। क्या वास्तविक हम यदि सोचेंगे कि इतने ही हमारा जीवन है, मनुष्य जन्म जो मिला, इसके ऊपर कोई नहीं सिखा रहे। सिखा रहे तो तुम भी शादी कर लो, तुम भी संतान कुछ बनाओ और संतान को लालन पालन करो, संतान को शिक्षा दो, अपने संतान को। इसको केंद्र करके ही ये समाज जो कि 99% 9 तक लोग सांसारिक सुख, जो कि ये तीन वर्गों को केंद्र करके ही शिक्षा देते हैं और प्रभावित होते हैं। स्वयं प्रभावित है और दूसरे को सिखाते हैं। तीन जो है, ये जगत इतना भ्रमित कर रहा है, सबको भ्रम में डाल रहा है। कोई भी नहीं बच पा रहा है। जैसे वर्णन किए हैं हम लोग, संत अमार्क भी इतने महान विद्वान है, वो लोग भी ये तीनों को केंद्र करके ही शिक्षा दे रहे।
ये तीनों ही ये जगत के लिए सब कुछ है। ये तीनों का परे और कुछ है ऐसा कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो भगवान कृष्ण को महारानी कुंती एक प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना में महारानी कुंती भी बोलते हैं, हे कृष्ण, आपका शक्ति इतना मोहक है, आपका लीला इतना मोहक है कि अ, मुझे बार बार भ्रमित करता है। तो एक श्लोक हम पढ़ेंगे महारानी कुंती की स्तुति। सभी ध्यान देकर देखिए, सुनिए। गोपी आदाद त्वयि कृतगासी धाम तावत् यते दशाश्रु कलिलाञ्जना संभ्रमख्यम वक्त्रामनिनिया भयं भय भावनाया स्थितस्य स मां विमोहयति भीरपि यद् विभति विभति। तो उसका ट्रांसलेशन ऐसा है, माय डियर कृष्ण, यशोदा took up a rope to bind you when you committed an offense, and your uh, perturbed eyes overflowed with tears, which washed the mascara from your eyes, and you were afraid. Through fear personified is afraid of you. Though fear personified is afraid of you, this sight is bewildering to you, to me. This sight is bewildering to me. तो महारानी कुंती भगवान के पास ऐसा प्रार्थना करते हैं, मुझे आपका ये सारे लीला भ्रमित कर रहा है। इसमें प्रभुपाद महाराज बहुत अच्छे से व्याख्या किए। ये भौतिक जगत ऐसा बनाए भगवान, सबको भ्रमित कर रहा है। भौतिक जगत और भगवान का लीला ये सभी इतने भ्रामक है। तो उससे पार होने के लिए, जो कि प्रहलाद महाराज शिक्षा दिए, कौमारे आचरन्ति प्राज्ञा। जो व्यक्ति कौमार अवस्था में बाल्य अवस्था से भगवत भक्ति अनुशीलन किया, वो ही भगवान का ये भ्रामक जगत से मुक्त हो सकता है। तो महारानी कुंती का ये जो श्लोक है, इसमें बहुत कुछ शिक्षा है। तो महारानी कुंती बोल रहे हैं, यशोदा took up a rope to bind you when you committed an offense. तुम जब एक भूल किया तो बस तुमको बांधने के लिए वो तैयार हो गए एक रस्सी लिए। इतने में आप कितने भयभीत हो गए हो। यदि आप स्वयं काल को भी भय दे रहे हो, काल भी आपका भय से कार्य कर रहा है, तभी आप इतने भयभीत हो। तो आपका ये लीला देख करके मैं तो भ्रमित हो जाता हूँ। मैं भी सोचता हूँ ये कैसा है। ये तो ब्रह्मा क्या भयभीत हुए, ब्रह्मा क्या भ्रमित हुए, मैं तो भ्रमित हो जाता हूँ कि आपका ये लीला को ये सब देख करके। हाँ, ये भी साधारण बच्चा है, हमारा बच्चा है। तो माँ जशोदा ने जब आपको पकड़ लिया और रस्सी में बांधने की कोशिश किया, तो आप इतने भयभीत हो गए। तो आपका लीला इतना पूर्ण है, भगवान का लीला, भगवान का कार्यकलाप भगवान जैसे पूर्ण है, तो उनका सारे कार्यकलाप ऐसा पूर्ण है। हर कार्यक्रम, हर कार्यकलाप, हर कार्य कर सकता है भगवान जैसे। सब कर्म जन्मादस्य जता अनुमयत, भगवान जन्म से उनका उनका संबंध हर वस्तु इतना पूर्ण है, परफेक्ट है। जैसे हम लोग देखे हमारे उपदेश अमृत में भी
तन नाम रूप चरित्र आदि सुकीर्तन, भगवान का नाम रूप लीला चरित्र ये सब इतना उन्नत है, भगवान से और पर है। और तो इधर अभी भगवान से बनाए हुआ उनका ब्रह्मांड, उनका ये सारे शक्तियां भगवान का परे क्यों नहीं बनेंगे? जो भगवान का परे है, हम लोग को बांधना, हम लोग को भ्रमित करना क्या तकलीफ है? जैसे ये हमारा उपनिषद में वर्णन किए, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ये सारे जो 24 तत्व है, ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड, आध्यात्मिक जगत, ये सब उनसे प्रकट हुए। तो इसी कारण उनके पास इतने शक्तियां हैं, भगवान के पास जितने शक्तियां हैं उतना शक्तियां हैं। भगवान जैसे भ्रमित करा रहे, तो उनका सारे शक्ति सारे जीव को भ्रमित कर पा रहा है। तो इधर प्रभुपाद महाराज व्याख्या किए कि हम लोग को ये भ्रम व मोहित अवस्था से मुक्त होना है, तो महाजनों का, जो द्वादश महाजनों का पदांक जबरदस्त यदि आश्रित होंगे, तब भी हम लोग बच सकता है। दूसरा और कोई उपाय से हमारा बल बुद्धि साधना ये सब के ऊपर जब हम निर्भर होंगे, गुरुत्व देंगे, तो हम लोग उतना ही रह जाएंगे। तो इसमें महारानी कुंती का जो शिक्षा है, शिक्षा को हम लोग गुरुत्व देना चाहिए। उनका वात्सल्य भाव माँ का, तो उन्होंने अपना वात्सल्य भाव के ऊपर ही केंद्र किए हैं कि मेरे प्यारे बच्चा, मेरे बेटे कृष्ण, देखो तुम जो ऐसे करते हो, तो आप कहते हो नहीं आप तो मेरे भक्त हो, आप मुक्त हो जाओगी। माँ कुंती का पोजीशन देखिए, माँ कुंती अपने को कितने बद्ध अवस्था सोच रहे। तो तुम ऐसा लीला करते हो, मैं तो मोहित हो जाता हूँ, मैं तो भ्रमित हो जाता हूँ, मेरे कैसे उद्धार होगा अभी बताओ। तुम अभी यदि उद्धार नहीं करोगे तो और कोई उपाय नहीं है। तेरे लीला, तेरा कार्यकलाप इतना मुझे भ्रामक है मेरे लिए। तो इसमें आगे बहुत अच्छे से महारानी कुंती शिक्षा दे रहे। तो इसमें मैं एक पॉइंट के ऊपर बोलना चाहूंगा कि उनका वंश, जैसे वृष्णि वंश में उन्होंने जन्म लिया है। वृष्णि वंश का हर व्यक्ति का पर्सनालिटी है, इतना महान व्यक्ति है सभी लोग। तो बोले अभी मैं तुम्हारा शरण में मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सारे सदस्य मुझे इतना आकर्षक है, ये लोग से मैं एक पल भी अलग हो पाना मेरे लिए असंभव लग रहा है। मेरा दोनों कुल, मेरा पितृकुल, मेरा पति का कुल, जैसे दुहिता है, दुहिता मतलब दोनों साइड को हित है। तो महारानी कुंती अभी क्या, पति कुल और पिता कुल, पति व स्वामी का वंशज सारे इतने महान है, और पिता का भी वंशज सारे इतने महान है, एक एक को मैं भूलना मेरे लिए असंभव है। चाहे पांडव लोग का बात बोलिए, चाहे वृष्णि वंशजों का बात बोलिए, सभी मुझे इतने प्यारा है। मैं सोच रहा हूँ ये सारे को सारे मैं भूल करके आपका संपूर्ण शरण में आ जाऊं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैं एक को भूलने को कोशिश कर रहा हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ। भगवान का लीला, भगवान का कार्यकलाप इतना ये मोहक है, ये बंधन का कारण होता है। जो कि महारानी कुंती अपना अनुभव से उन्होंने बोल रहे, मुझे आप इतने बांध के रखा हो, ये सारे बंधन को मेरा आप ही काटिए। मैं आपका सतत चिंतन करूं, मैं आपका पूर्ण आश्रित कैसे बन जाऊं।
तो इसमें बहुत कुछ शिक्षा है महारानी कुंती के माध्यम से। महारानी कुंती के पास इतने महान महान लोग थे, जो कि हम लोग कहते हैं वैष्णवों का आश्रय। महारानी कुंती के सारे संबंधी परम वैष्णव है, भगवान का नित्य पार्षद है। होने पर भी उन्होंने अभी ये लोग को हम कैसे भूल जाओ, चिंतन कर रहे। तो हम लोग का संबंधिया, शरीर संबंधिया, और ये समाज, हमारा जो देश, उसको यदि हम तुलना करें, ये लोग का स्थिति क्या है। तभी हम लोग उनको भूलना, उनसे दूर रहना हम लोग को संभव नहीं हो रहा है। तो हम लोग ऐसा उन्नत व्यक्तियों को हम चिंतन करेंगे, उनका आशीर्वाद को गुरुत्व देंगे, तब भी हमारा ये संसार, ये शरीर संबंधी जो मानव मानस देह गेह जो किछु मोर, देह और गेह, तो हम लोग मुक्त हो सकते हैं। तो जैसे हमारा भगवान प्रभुपाद महाराज ने वर्णन किए कि ये द्वादश महाजनों का नाम लिए, ऐसे महाजनों का पदांक अनुसरण यदि हम लोग जबरदस्त आश्रित होंगे, तो शायद उनका आशीर्वाद से हमारा जो ये भ्रम और जो बंधन अवस्था, ये सब मुक्त हो सकता है। तो प्रहलाद महाराज, जो कि भगवान का शुद्ध भक्त है, उन्होंने बाल्य अवस्था से ही नारद मुनि के आश्रित है। तो इसी कारण यदि इतने महान महान लोग ये त्रिवर्ग को केंद्र करके प्रहलाद महाराज को शिक्षा दे रहे, लेकिन थोड़े भी प्रहलाद महाराज के द्वारा प्रहलाद महाराज प्रभावित नहीं हो पा रहे। जैसे हम लोग एक उदाहरण दिए कि सर्कस, सर्कस देखने को जाओ, लेकिन ऐसा व्यक्ति सर्कस न देख करके रह सकता है। बाकी सारे को सारे व्यक्ति सर्कस का आनंद लेते रहेंगे। सर्कस का आनंद लेते रहेंगे मतलब ये सांसारिक सुख में ही रह जाते हैं। सांसारिक सुख का परे बनना है, तो ऐसा व्यक्तियों का हम लोग पूर्ण आश्रित होना होगा। ऐसा व्यक्तियों का जिसे आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाही दिल, आर सब जाए अकारण। तो हम लोग और क्या वर्णन करेंगे। तो सड़क गोस्वामी के तो हम लोग बहु बार गुण कीर्तन किए हैं। तो सड़क द्वादश महाजनों की, द्वादश महाजनों का माध्यम से हम लोगों की शिक्षा यह है कि भगवान, जैसे आजकल कलयुग में बहुत लोग ये भगवान वो भगवान वो भगवान ऐसे करते हैं। कोई कहते ब्रह्मा भगवान, कोई बोलता है शिव भगवान, कोई कहते हैं समस्त देवादेवी भगवान। ये सब नहीं है। उनको ऐसे महान द्वादश महाजन लोग जिसको सतत तो आराधना करते हैं, जिसका आश्रित होते हैं, ऐसा व्यक्तिगत, ऐसा भगवान को हम लोग भी आश्रय व आराधना करना चाहिए। महाजन जन गतस्य पंथा। बाकी ये जगत इतना भ्रमित करेगा सभी जैसे भगवान है। हमारे द्वारिका लीला में थोड़ा याद हुआ, भगवान ने इसी कारण सबको लेके चले गए, क्योंकि भगवान का सारे वंशज भगवान की तरह ही है। तो इसके बाद कोई भ्रम में न फंस जाए कि उनके सारे संतान भी भगवान, सारे संतान भी भगवान विष्णु विष्णु ही है, लेकिन होने पर भी भगवान जो परम नियंता भगवान है कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान से ये स्थापना करने को। अन्यथा ये जो जगत सर्वत्र जो 24 तत्व भगवान के अंश, भगवान का भगवान से जो सृष्ट समस्त 24 तत्व, ये 24 तत्व, हर तत्व हर जीव को भ्रमित कर सकता है, क्योंकि हर तत्व के पास भगवान का अंश है, भगवान के पास समझ सकती है। जैसे पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्ण पुरुषोत्तम से 24 तत्व सृष्टि हुआ,
तो इसी कारण सबके पास पूर्ण शक्ति है, लेकिन भगवान जो है परिपूर्णता है। पूर्ण और परिपूर्णता में ये फर्क है। उधर वो पूर्ण ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इस श्लोक में प्रभुपाद महाराज ये दर्शाए भगवान जो है परिपूर्णता और बाकी सब पूर्ण है। परिपूर्णता पूर्णता में यही फर्क है। परिपूर्णता जो है उन्होंने अपना ही जैसे हजार बना सकते हैं, हजारे कृष्ण हजारे राम एक समय में बना सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जैसा दूसरा बनाना सहज नहीं है, संभव नहीं है। प्रभुपाद महाराज उदाहरण दिए कि ये पृथ्वी यदि भगवान की तरफ पृथ्वी के पास जितना जीव है, लाखों जीव का भरण पोषण शासन नियंत्रण सब कुछ कर पा रहे भगवान जी से कर रहे भूलोक, लेकिन ये पृथ्वी ऐसा ही है कि पृथ्वी बना नहीं सकता है। तो इसी कारण ये पृथ्वी जो है पूर्ण है भाई, ये भूलोक जो है पूर्ण है, भगवान से सृष्टि हुआ, पूर्ण पुरुषोत्तम से पूर्ण पुरुषोत्तम का अंश है। तो अंश होने के कारण भगवान के पास जितने क्वालिटी है इसमें भी इतने क्वालिटी है, लेकिन परिपूर्णता नहीं है। पूर्ण है, परिपूर्णता नहीं। पूर्ण परिपूर्णता में यही फर्क है। भगवान कृष्ण जब आवश्यक हुआ लाखों कृष्ण बन गए गोपियों के साथ। भगवान राम दंडकारण्य में लीला में वर्णन है, जब खर दृश्य ये सब 14,000 सैन्य सामंत को ला करके युद्ध को आह्वान किए भगवान राम को, तो भगवान राम 14,000 प्रकट हो गए, सबके साथ युद्ध करने लगे। तो सभी राम हर तरफ राममय हो गए। तो भगवान जो है परिपूर्णता, भगवान अपने को लाखों जगह में विस्तार कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण भगवान जो है परम नियंता है, हम लोग उनका अंश। भगवान का सारे गुण हम लोग के पास होने पर भी हम लोग को परिपूर्णता नहीं है। तो इसी कारण हम लोग को परिपूर्णता व परम पुरुष परम नियंता भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रित होना चाहिए। नहीं तो जैसे आजकल कोई कहता है हाँ देवा देवी का भी आराधना करने से वही है, उसका भी आराधना कर, माँ बाप का भी सेवा करने से भी वही है, समाज का सेवा करने से भी वही एक ही फल है, सब एक ही जगह को जाना है। जत्त पथ तत्व मत, जत्त मतो तत्व पथ, ऐसा हो जाता है। तो ये समस्त भ्रम से हम लोग मुक्त होंगे। इसलिए प्रभुपाद महाराज सूत्र दिए, ये द्वादश महाजन का यदि हम लोग पदांक का अनुसरण करेंगे जबरदस्त, तो हम आसान से मुक्त हो सकते हैं। तो द्वादश महाजन जो है ये सभी भगवान कृष्ण का आश्रित है। स्वयंभू नारद शंभु, स्वयंभू स्वयं शिव जी, स्वयंभू नहीं, स्वयंभू जो है ब्रह्मा जी, हाँ, स्वयंभू नारद शंभु, शंभु जो है स्वयं शिव जी, ब्रह्मा नारद कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक कुमार, 4 कुमार, ये लोग सभी जो भगवान का आराधना करते हैं। तो इसमें शिक्षा है कि भगवान कृष्ण सबका आराधना करते, सबका सेवा करते हैं। सिर्फ शिव जी का कोई कहते नहीं तो तुम्हारा कृष्ण तो, तुम्हारा राम तो भगवान शिव का आराधना किए, भगवान दुर्गा माँ की आराधना किए। तो इसमें मालूम नहीं हो रहा है वो कैसे भगवान है, यदि वो दूसरे को आराधना कर रहा है, शिव जी को आराधना कर रहा है, दुर्गा को आराधना कर रहा है। तो भगवान उनका सारे भक्त का आराधना किए हैं। जैसे माँ नंद माँ यशोदा माँ की सेवा किए, वसुदेव की सेवा किए, समस्त देवा देवी को भी सेवा किए। भगवान का प्रिय जो है सारे भक्त है। इसी कारण हम लोग ये सब से भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये सब भ्रम से हम कैसे मुक्त होंगे, यदि शुद्ध भक्त को, जो द्वादश महाजनों को देखेंगे, नहीं ये सब व्यक्ति लोग लेकिन अन्य दूसरा देवा देवी के ऊपर इतना गुरुत्व नहीं दे रहे। जैसे वैष्णव लोग अन्य दूसरा इतना देवा देवी के ऊपर गुरुत्व नहीं दे रहे, तो वैसा ही भगवान का ये द्वादश महाजन परम वैष्णव लोग है, ये लोग सिर्फ भगवान कृष्ण परम नियंता हिसाब से ग्रहण किए। तो हम लोग भी उनका पदांक अनुसरण करके कृष्णस्तो भगवान स्वयं,
उनका हम पूर्ण रूप में कैसे आश्रित होंगे, इसको केंद्र करके हमारा जीवन यापन करना होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरु महाराज की जय। कुछ प्रश्न उत्तर और कुछ मतामत हम लोग सुनेंगे अभी। हरे कृष्णा महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये क्लास के लिए। Yes, if anyone is having any questions regarding today's class, they can raise the hand and ask His Holiness Bhakti Swarup Nilambar Krishna Maharaj. आपका आवाज नहीं आ रहा है महाराज। हाँ। हरे कृष्णा। मेरा आवाज अभी आवश्यक नहीं है, आप लोग बोलिए। हरे कृष्णा महाराज जी, अभी ये मतलब दुनिया में तो हाँ? आध्यात्मिक विद्या का मतलब स्पिरिचुअल एजुकेशन कुछ नहीं हो रहे। स्पिरिचुअल एजुकेशन सिस्टम में कैसे ले आना, मतलब अभी ये आध्यात्मिक विद्या को हम रेगुलराइज कैसे कर सकते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान को हम कैसे प्रयोग करेंगे? हाँ, हमारा पाठशाला, हर पाठशाला में हम वो ले आना है तो क्या कैसे कैसे ले आ सकते हैं, क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारा वैदिक शास्त्र को सिलेबस में कैसे लाएंगे? इसमें सब प्रभुपाद महाराज वेदांत सूत्र में सब सूत्र दिए हैं, शिक्षा दिए हैं। वेदांत सूत्र में ये सब साइंटिफिक है। तो गुरु महाराज ने वेदांत सूत्र को साइंटिफिक कमेंट्री दिए हैं। तो हम लोग ये वेदांत सूत्र को माध्यम से हमारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हम ये माध्यम से शिक्षा दे सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं। तो हमारा सिलेबस में उसको स्थापना करना तो इतना सहज नहीं अभी। इसी कारण प्रभुपाद महाराज बताए, जैसे विश्व का सर्वत्र हमारा हरि नाम प्रचार करने के लिए भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज को उनका गुरु वर्णन किए कि तुम अमेरिका में प्रचार करो। अमेरिका का कुछ लोग यदि ग्रहण करेंगे तो स्वतः सभी देशवासी ये कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करेंगे। तो अभी हो रहा है, सभी लोग फॉलो कर रहे, लेकिन कुछ जो कि शिक्षा और ये सभी जगत में प्रभावित नहीं हो रहा है, कोई ग्रहण नहीं कर रहे। तो उसको देख करके भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज दूसरे सूत्र दिए हमारा गुरु महाराज को, तुम अच्छे ढंग से 4-5 साइंटिस्ट को सिखाओ हमारा भागवत धर्म का आवश्यकता पर। जब वो लोग समझ लेंगे कि हमारा भागवत धर्म सबके लिए कितने आवश्यक है, जब वो लोग अनुभव कर पाएंगे तो वो लोग का माध्यम से भगवान कुछ सूत्र भी दे देंगे। जैसे वो लोग हमारा कुछ साइंटिस्ट में पढ़ रहा था, वो लोग सोच रहे थे हम लोग को यदि मालूम हो जाएगा हम लोग अभी कहाँ है। जैसे जहाज में जाते थे, जाने का समय, फ्लाइट में जाने का समय, हम कहाँ है और टाइम कितना हुआ,
ये सब यदि मालूम हो जाएगा तो क्या उसको लेकर के बहुत वो लोग काम कर सकते हैं। तो उसको केंद्र करके वो लोग सृष्टि कर दिए और उसका आवश्यकता को वो लोग अनुभव किए। जैसे हम लोग दूसरे कहते हैं हमारा मोबाइल कंप्यूटर, उसका इस जगत को कितने आवश्यकता है। नहीं, अभी तो कंप्यूटर हर गांव में हर व्यक्ति को आवश्यक है। तो वो साइंटिस्ट अनुभव किया ये कंप्यूटर जो है इतना आवश्यक होगा। तो उन्होंने कंप्यूटर उद्भावन किए। तो वैसा ही कहने का मतलब है जब हमारा ऐसा उन्नत साइंटिस्ट, उन्नत शिक्षित वृंद समाज यदि अनुभव कर पाएंगे कि हमारा वैदिक शास्त्र का इतना आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है, जैसे मोबाइल सबके लिए आवश्यक है, वो लोग अनुभव कर पाए तो इसे हम मोबाइल को उद्भावन किए। अभी हम लोग अनुभव देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में, घर घर में मोबाइल है, घर घर में कंप्यूटर है। तो वैसा ही ऐसा उन्नत व्यक्ति को जिनके पास हम पहुंचाना होगा, वो लोग को हृदय में ये सब हमें जागृत करना होगा। नहीं भाई, भागवत धर्म जो है, भागवत शास्त्र है, भगवान का शरणागति, ये समस्त मनुष्य के लिए है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ये अनुदान है, आशीर्वाद है समस्त मनुष्य समाज को। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने ये सब सूत्र हम लोग को दिए हैं। अभी अ, हम लोग का काम है वो लोग को अनुभव कराना। ये जो कि भगवत सेवा, भागवत धर्म समस्त मनुष्य समाज के लिए अ, बहु आवश्यक है। जब ऐसा लोग अनुभव कर लेंगे तो वो लोग भगवान का चिंतन करेंगे, वो लोग का माध्यम से ऐसा कुछ एक बुद्धि आएगा, जो बुद्धि है ऑटोमेटिक स्वतः। जैसे आजकल का गवर्नमेंट है हर गांव में कंप्यूटर सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर में स्थापना कर रही है। पहले हमारा गांव गांव में जैसे शराब का अड्डा, हम्म, गांव गांव में तो वैसा ही शराब का उपादेय वो लोग समझ में पाया। जो लोग एक बार शराब पिएगा तो उसका प्रभाव से प्रभावित होकर के जैसे वो लोग अनुभव कर पाए तो वो लोग को स्थापना किए। तो वैसा ही साइंटिस्ट लोग यदि अनुभव कर पाएंगे तो प्रभुपाद महाराज का दृष्टि से देखें कि वो लोग स्थापना कर देंगे। तो ये हमारे वैदिक शास्त्र के लिए प्रभुपाद महाराज का महत दृष्टि, महत इच्छा और भगवान चैतन्य महाप्रभु का भी आशीर्वाद है। ये निश्चय इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन हम लोग को गुरु महाराज जो दिए, शिक्षा दिए, जो प्रोसेस दिए, वो प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाना होगा। हरे कृष्णा महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्रश्न है महाराज जी, हाँ, ये कुछ कुछ लोग का समझाना, मतलब लोग ऐसा सोचता है खाली ये स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक विद्या जो है वो हम लेने से काफी है हमको। ये भौतिक विद्या मतलब भौतिक चीज का कुछ भी हमका लेन देन नहीं जरूरत पड़ता है, हम उसका ऊपर इतना ध्यान नहीं देंगे, ऐसा सोचता है। लेकिन हमको भक्ति करने के लिए भी बहुत कुछ भौतिक चीज आवश्यकता होता है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? बहुत अच्छा है। देखिए हमारा भक्ति रसामृत सिंधु में ये प्रश्न है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंध वस्तुना मुमुक्षु भी परित्याग फल्गु वैराग्य कथ्यते। तो उसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। वास्तविक वैराग्य क्या है? युक्त वैराग्य जो है हर चीज भगवान का सृष्ट है, भगवान से आया है। जैसे हम लोग ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते उसको पढ़े,
मुदच्यते मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम से वो सब उच्चते, सृष्टि हुए हैं, प्रकट हुए हैं, आए हैं। तो इसलिए निश्चित भाव में उसका कुछ उपयोग है, आवश्यकता है, व्यवहार है। जब हम उसको समझ नहीं पा रहे तो मतलब हम लोग मायावादी, हम लोग भ्रमित है। मायावादी का अर्थ क्या? भ्रमित है। ये सूत्र से सारे, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, हर चीज का आवश्यकता है। तो इसी कारण उनको कहते हैं क्या? फल्गु वैराग्य। नहीं, ये सब नहीं चाहिए। जैसे मेरा अपूर्णता के कारण मैं एक उदाहरण दिया था कि जब पहले मोबाइल सृष्टि हुआ तो मैं मोबाइल के ऊपर अबड़ा कर, है मोबाइल क्या करेगा हमारा। हम्म, तो इसके बाद हम संकीर्तन बस लेकर के मणिपुर गया। उस समय मोबाइल के ऊपर गुरुत्व नहीं देता था। गुरु महाराज मुझसे कुछ बातचीत करने चाहे तो मैं बातचीत कर नहीं पाया। हम्म, तो मैं वंचित हो गया। मुझे मेरे साथ से बातचीत करने के लिए गुरु महाराज जो हमारा जो मणिपुर का आरजीबीसी हमारा ये प्रभु का माध्यम से गुरु महाराज बुलाते थे। इस समय मैं 2 बार मुझे बुलाए, बुला करके बोले महाराज तुमसे बातचीत करना चाहते हैं। देखो ये गुरु हम लोग को सर्वस्व हमारा गुरु बोल के स्वीकार किया, यानी वो गुरु महाराज से हम लोग बातचीत कर नहीं पा रहे। एकनाथ प्रभु, हाँ, उनका घर को हम 2 बार जा करके गुरु महाराज से हम बातचीत किए, कैसे करना, क्या कर रहे हो, कैसे हमारा प्रचार हो रहा है, सब गुरु महाराज ने पूछताछ कर रहे थे। और गुरु महाराज हमको इंस्ट्रक्शन दिए कि मणिपुर में ज्यादा रात तक तुम लोग स्टॉल मत लगाओ। हाँ, संध्या समय आप मंदिर के कैंपस में रहो। ये सब कुछ वर्णन कर रहे, बातचीत कर रहे थे। और शरीर को ध्यान कर, ये सब जैसे बाप बेटे को जैसे बातचीत करते हैं वैसा स्नेह करते थे। तो ये हिसाब से हर चीज का आवश्यक है। हम लोग उसका व्यवहार जानते नहीं है। तो इसी कारण हम लोग क्या सोचते हैं ये सब अनावश्यक है। तो उसको कहते हैं फल्गु वैराग्य। फल्गु मतलब शुष्क वैराग्य, वास्तविक वैराग्य नहीं है। वास्तविक वैराग्य जो है सब भगवान का संतुष्टि के लिए सबको, सबका आवश्यकता है। हम व्यवहार कर नहीं पा रहे, हमको अयोग्यता समझना चाहिए। हर चीज भगवान का संतुष्टि के लिए भगवान ने बनाए हैं। चाहे से कोई साइंटिस्ट बनाए, चाहे कोई स्पिरिचुअलिस्ट बनाए, इसमें कोई फर्क नहीं है। हम लोग परस्पर विद्वेष करते हैं। साइंटिस्ट स्पिरिचुअल जगत को विद्वेष कर रहा है और स्पिरिचुअलिस्ट साइंस जगत को विद्वेष कर रहा है। ये साइंटिस्ट लोग सब बेकार है और जो साइंटिस्ट लोग कहते हैं स्पिरिचुअलिस्ट लोग बेकार है। कुछ काम नहीं कर रहे, हर समय भगवान 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 होते, क्या करते। लेकिन भगवान का बनाया हुआ हर इच्छा, हर वस्तु का पीछे कुछ एक महान उद्देश्य है। ये महान उद्देश्य है, ये सूत्र है। महान उद्देश्य है भगवान जरूर हर वस्तु का माध्यम से भगवान को हम संतुष्ट कर सकते हैं। भगवान का संतुष्ट के लिए ही भगवान ने बनाए हैं, जैसे हर संतान को। जैसे हम लोग एक बार डिस्कस किए कि अष्टवक्र ऋषि, उनको देख करके सब लोग हंसने लगे। तो अष्टवक्र ऋषि ने बोले जो बनाया ये डिजाइन वो आनंद ले रहा है। लेकिन ये डिजाइन से तुम लोग को देख करके मजाक कर रहे हो। लेकिन ये डिजाइन तुम लोग के लिए नहीं है। ये डिजाइन जो है भगवान का संतुष्टि के लिए भगवान बनाए है। देखिए, जो कि 8 फोल्ड है उनका शरीर, उन्होंने ये शिक्षा दी है। यदि हमारे सांसारिक दृष्टि में देखा जाए तो ऐसा शरीर क्या उपयोग आएगा। लेकिन तभी बोल रहे भगवान ये डिजाइन बना करके वो संतुष्ट हुआ है।
उनका संतुष्टि को केंद्र करके भगवान ने बनाया है ये डिजाइन। ऐसा मत सोचो कि ये एक्सीडेंटली ये डिजाइन बन गया, नहीं नहीं, हर चीज भगवान का इच्छा से बन रहा है। ठीक है प्रभु, जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा क्लास का समय तो हो गया महाराज जी। हाँ, गोविंद महाराज का कुछ कहना है? महाराज जी प्लीज। नहीं, महाराज जी तो बहुत अच्छा बोल ही रहे हैं, बोल गए हैं। आपका जो प्रश्न था उसके बारे, हाँ दंडवत प्रणाम। बोल सुशीला श्रीपाद, जो श्री हमारे सनातन गोस्वामी जी का प्रश्न है, उसका बहुत बहुत बढ़िया एक भागवत में है 5:10:18 और 5:18:10 आई थिंक। तो सनातन गोस्वामी कैन यू ओपन can you read the translation and purport for the benefit of all of us? Read the shloka also. Yes, Maharaj. Magaradharatmaj वित्तबन्धुषु संगो यदि स्यात् भगवत् प्रियेषु न प्राणवृत्ताय परितुष्टात्मवान् सिद्धयति अधुरान्न तदेन्द्रिया प्रियः। So you will memorize this, correct? Yeah, Maharaj, I will try and I will make progress. Yes. Translation. My dear Lord, we pray that we may never feel attraction for the prison of family life, consisting of home, wife, children, friends, bank balance, relatives, and so on. If we do have some attachment, let it be for devotees, whose only dear friend is Krishna. A person who is actually self-realized and who has controlled his mind is perfectly satisfied with the bare necessities of life. He does not try to gratify his senses. Such a person quickly advances in Krishna consciousness, whereas others who are too attached to the material things find advancement very difficult. Hare Krishna. हमारा जॉइन करा आज कुछ नहीं है, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग सुबह से 7 शुरू होता है। Hare Krishna, Govind Maharaj ji. Yes, so you read the purport? Okay, purport also I will. Yeah, purport means read quickly. Yes, purport. When Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu was requested to explain the duty of a Vaishnava, a Krishna conscious person, he immediately said, Asat Sanga Tyaga Yei Vaishnava Achara. The first business of a Vaishnava is to give up the association of persons who are not devotees of Krishna and who are too attached to material things, wife, children, bank balance, and so on. Prahlad Maharaj also prays to the personality of Godhead that he may avoid the association of non-devotees attached to the materialistic way of life. If he must be attached to someone, he prays to be attached only to a devotee. A devotee is not interested in unnecessarily increasing the demands of the senses for gratification. Of course, as long as one is in this material world, one must have a material body and it must be maintained for executing devotional service. The body can be maintained very easily by eating Krishna Prasad. As Krishna says in Bhagavad Gita 9.26, Patram Pushpam Phalam Toyam Yome Bhaktya Prayachati Tadaham Bhakta Upahrutam Asnami Prayatatmana. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, fruit, or water, I will accept it. Why should the many be unnecessarily increased for the satisfaction of man? Devotees should eat as simple as possible. Otherwise, attachment for material things will gradually increase and the senses being very strong
will soon require more and more material enjoyment. Then the real business offline, the advance in Krishna consciousness will stop. Hare Krishna. Maharaj, I would like to stress upon this point. As long as in this material world, one must have a material body and it must be maintained for executing devotional service. Hare Krishna Maharaj. Yes. Maharaj, we are not able to hear your holiness. So basically, artist inactive. Is it is behind why Radhakunda vibration is maybe more prominent? What Maharaj, your voice is breaking. essential, because voice jungles Radhakunda. नीलांबर महाराज जी, तब तक हम श्याम किशोर प्रभु का कुछ प्रश्न है वो प्रश्न लेंगे. हमारा गोविंद महाराज जी मे बी विल. Maharaj ji, maybe you can just log off and join back again. Yeah. Shyam Kishore Prabhu, please. हरे कृष्णा. श्याम किशोर प्रभु. मेरा प्रश्न नहीं था, जस्ट मैं बहुत अच्छा ये जो श्लोक उन्होंने, हाँ, you're able to hear me? Yes, yes, Prabhuji. Hari Bol. Yeah, Prabhuji, we are able to hear you, but there is some delay, so you please go on. आ गया. गोविंद माधव महाराज. हाँ जी. हरे कृष्ण. हाँ महाराज, अभी आप सुनाई दे रहा है आपका बात. Okay, because devotees or sadhaka is not desiring, hankering for anything material independently. It is only in relation to the service of Sri Guru Gauranga, correct? And so the provision for that is made. Endeavor only to that end may be allowed, but other than that, to independently thinking, when we increase the independent desires for self-aggrandizement, it is not necessary. There is an instruction in Mahabharata, something very. It says that one should not have sankalpa for doing even many religious duties. धर्म निभाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है ना, तो अर्थ कमा के भी व्यक्ति क्या करेगा, धन को खर्च करेगा ना. तो इससे बढ़िया है कि वो धर्म का भी संकल्प छोड़ दे, क्योंकि वो कहते हैं कि यदि मिट्टी शरीर पे लगाओगे उसको धोना पड़ेगा ना. You have to wash the dirt put on your body. Then why to put the dirt itself? So don't even desire for religious duties or any other duties. Only duty of the soul is to devote to for the pleasure and satisfaction of Krishna and Sri Guru. That will take care. So that way a sadhaka can remain free from this desire or conviction or need that I need, we need this, we need that. That's why apparently on this path of pure devotional service, one may be doing many things,
for the service of Krishna and Guru, and still he remains unimplicated. That's the point. So what is devotional and what is not depends on what we are craving. Are we justifying just in the name of devotional service? But oftentimes it's what we want for myself, what I want for myself. That is understood and addressed properly. One can live very simply, as Prabhupada says in the purport. A devotee can live simply by having simple Krishna Prasadam and whatever following the order of the spiritual master. So we know that Krishna has created the whole universe. So many beings are there. And we have been given so much intelligence and the strength of the body, education. So what a minimum necessities we can be given, we can acquire very easily. So if we are not self-centered, not interested in self-aggrandizement of any sort, somehow whatever we need, even mobile phone or whatever, will be provided to get. Things will come by Krishna's arrangement. That's why Yadrichaya, the shloka is whatever on its own accord, whatever becomes available, somebody will give you the chadar, somebody will give you the mobile, because you are engaged for the higher cause. They will be benefited tremendously. So let them, you just and then you don't have to worry about material means. Krishna, even an elephant somehow, he's also taking care of tiger, even of ant. So don't you think Krishna definitely takes care of his devotees? The care is already provided. We simply have to be able to see it. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Thank you.